जी आया नू ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਵੱਜੋ ਵੀ ਦੇਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਸਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਨਸਲੀ ਸਮਾਜ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਟੈਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੇਅੰਤ ਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਡ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ कि साड़ी भाईचारक सांझ के उत्ते ये अटैक किया गया। इस दे संबंध में अज के प्रोग्राम के होवांगे जी शामिल। आप सब ने भी गुजारिश करते हैं कि प्रोग्राम सुनना भी और शामिल भी होना। जी आशा ने वैसे हम अपने सारे लिसनर्स को एक बात ज़रूर बताना चाहते हैं कि जब आप सरी हमारे शहर में आते हैं, ब्यूटीफुल सरी ब्रिटिश कोलंबिया में, तो आप चाहते हैं कि आप यहाँ सेफ रहे और सरी के अंदर जो भी हादसे होते हैं आप तक पहुँचाने की हमारी पूरी कोशिश होती है। यानी यू आर क्वाइट अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन सरी सो दैट व्हेन यू कम हियर टू विजिट अस आपको कोई सरप्राइजेस ना मिले। तो इसलिए आज का जो डिस्कशन है वो बहुत ज़रूरी है। Canada temple vandalized by Khalistan supporters. Fourth incident this year. Canada temple vandalized. Officials said anti-India posters were put on the walls and the gate of the Lakshmi Narayan Mandir in Surrey, one of the oldest temples in British Columbia. A temple in Canada was vandalized allegedly by Khalistani supporters on Saturday night, triggering outrage among the Indian community. Officials said pro-Khalistan posters were put on the walls and the gate of the Lakshmi Narayan Mandir in Surrey, one of the oldest temples in British Columbia. The posters called for Canada to investigate India's role in the death of Khalistani terrorist Hardeep Singh Nijjar on June 18th. A video captured by a security camera shows two masked men pasting the posters on the walls and the gate of the temple. Designated terrorist Hardeep Singh Nijjar, who headed Khalistan Tiger Force and the Canadian arm of Sikhs for Justice, was shot dead by unknown attackers in June this year. This is the fourth incident of temple vandalization in the country this year. In April this year, Swami Narayan Temple was vandalized in Ontario in February. The Ram Mandir in Canada's Mississauga was attacked, and in January, a temple in Brampton was defaced with anti-India graffiti. India has expressed concern over escalating activities by Khalistan supporters in Canada. The centre has clamped down on organizations and individuals trying to stoke separatist sentiment in different countries. Last month, posters labeling several senior Indian diplomats as killers had surfaced in Canada, following which External Affairs Minister S. Jaishankar had called upon partner countries including Canada, the UK and the US to resist providing platforms to extremist Khalistani ideology, arguing that it's detrimental to international relations. India has been asking Canada against giving space to pro-Khalistani separatists and extremist elements, Mr. Jaishankar said. Rejecting the notion that this government is soft on Khalistan supporters, Prime Minister Justin Trudeau had said that Canada has always taken threats of violence extremely seriously. We have always taken serious action against terrorism, and we always will do, Mr. Trudeau said. ये जो आर्टिकल है आज सुबह सुबह सारे न्यूज़ मीडिया को मिले होंगे. Everybody has seen this and this article is from NDTV. और जब इस आर्टिकल को हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं. लेकिन सबसे पहले सरी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर में जो हादसा हुआ है उसके बारे में हम ज़रूर डिटेल्स जानना चाहेंगे, अपने लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे. हमारे साथ इस वक्त मंदिर के प्रेसिडेंट सतीश कुमार जी शामिल होने जा रहे हैं. उनसे हम ज़रूर बातचीत करेंगे और उनसे ज़रूर सवाल उठाएंगे कि was this the attack at Sari Mandir on Saturday night
has that become a fear among our Indian community in Surrey? तो उनसे ज़रूर बातचीत होगी. ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਾਨਾ ਜੀ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਵਾਗਤ. ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ. ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਇਹ ਅਟੈਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁ ਨਸਲੀ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਬਈ ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਜੀ. ਐਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ 7 ਵਜੇ ਦੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ 2 ਫਲੈਟ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਟੈਂਪਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡੋਰ ਹੈਗਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਫਲੈਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਉੱਪਰ. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁੱਡੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਪਲ ਗਨ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣ ਉਹ ਫਲਾਰ ਦੋਨੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟੇਪਲ ਗਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਟੇਪ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਏ ਜੀ ਦੋਨੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਜੀ. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਦੈਨ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ ਦੀ RCMP ਆਫਟਰ ਦੈਟ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, RCM ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ. ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ. ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ. ਜੀ. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ 12 ਵਜੇ ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ. ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਬੜੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੀ. ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਨਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫਾੜ ਪਾਉਣ ਜੀ. ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰੋਕਾਂਗੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜੀ. सतीश जी, आपने कहा कि आपने RCMP रिपोर्ट की, पुलिस का क्या कहना है? What have they have said to you? वो क्या कर रहे हैं, लास्ट उनके साथ मीटिंग हुई थी तो देयर इन्वेस्टिगेशन राइट नाउ कम टेप टू भेज दिया है जी. तो सो फार डिड नॉट गेट नो आंसर. क्या कर रहे हैं वो राइट जी. अभी उनके पास सब कुछ फिंगरप्रिंट है, सब कुछ है राइट. अभी तक RCMP ने कुछ हमें बताया नहीं क्या कर रहे हैं. They only told we do the investigation and we try to put charges on this guy. Nothing heard so far. और सतीश जी, अपनी कम्युनिटी किस तरह से इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं? What are they thinking? उनको डर है, फियर है, किस तरह से महसूस कर रहे हैं? देखो शाना जी, बात ये है, देखो जो कम्युनिटी है जी, क्योंकि वो टॉलरेंस ऐसी चीजें नहीं करती वो, क्योंकि डर तो है कम्युनिटी को, क्योंकि वहाँ पर ये सबसे सदी में सबसे बड़ा टेम्पल है जी. हर तरह की कम्युनिटी वहाँ पर आती है. हाँ जी. ओवर कई फंक्शन में ओवर 10,000 15,000 आदमी आते हैं वहाँ पर. बिल्कुल. तो ऐसे जो ये बड़ा मंदिर है, क्योंकि हम नहीं चाहते भी जो कम्युनिटी में जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं, तो देखो लोगों को कल हमने एक मीटिंग में बोर्ड में मीटिंग भी की थी, कल मीटिंग हुई थी, तो आपको पता कि यंग ब्लड जो है हाँ जी, वो तो होती बात करते हैं, बट वी आर पीसफुल कम्युनिटी, वी जस्ट फॉलो द लॉ. लॉ से हम लॉ को फॉलो करना चाहते हैं, भी क्या करना चाहिए. बट देखो जो ये घटना घटी है जी, इसमें जो कम्युनिटी है, देखो उनके मन में तो देखो डर भी होता है, कुछ डरती भी है, कुछ स्ट्रॉन्ग भी होते हैं. हर तरह की कम्युनिटी में आदमी बैठे हैं, गंदे बुरे सब तरह के आदमी बैठे हैं. और हम नहीं चाहते, क्योंकि एज ए मैन मेरा ड्यूटी है कि हम इसको लीगल प्रोसीजर लीगल जो प्रोसीजर है उसकी तरह अडॉप्ट करें. बट ऑन द अदर हैंड जो यंग जनरेशन है वो तो सुनती नहीं बात हमारी भी. तो हम चाहते हैं भी लोग हमारे साथ आपके थ्रू मैसेज हम रिले करना चाहते हैं. जो कम्युनिटी है जी, वो सारी कम्युनिटी इकट्ठी होनी चाहिए.
क्योंकि जो लोग जो है, जो कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, हम्म। तो ये जब आप आगे कहते ऐसे हैं कि करते रहेंगे। कुछ लोग ये काम कर रहे हैं, आपकी गिनती कितने तक है? एक, देखो मैं तो 50, सोचता 100? 400, 600 आदमी होगा ज्यादा से ज्यादा जी, ठीक है। राइट? हाँ जी। क्योंकि एवरी कम्युनिटी नॉट बैड। हम्म। जो ये लोग कर रहे हैं इसमें, ये जो लोग कर रहे हैं, ये कम्युनिटी जो हमारी है हम्म। उसमें मतभेद भरने की कोशिश कर रहे हैं जी। हम्म। और मेरा कम्युनिटी बड़ी इंटेलिजेंट कम्युनिटी है हमारी, जी। राइट? वो ऐसा नहीं, इनको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा क्या कर किया जाए। हम्म। ये किसी की डिमांड है, वी आर विद दोज गाइस टू। हम्म। किसी का गलत काम होता है, गवर्नमेंट के साथ फाइट करो, नॉट दी जो गंदी चीजें कम्युनिटी में फैलाने के लिए। इट्स नॉट राइट। इस मुल्क में हम लोग आए हैं यहाँ के डाइवर्स कम्युनिटी में रहने के लिए और एक दूसरे के साथ हैप्पीली रहने के लिए। और जब इस हाँ। तरह के हादसे यहाँ होते हैं, सतीश जी, आपको पता है कि हमारे मुल्क, ये कनाडा के मुल्क के कानून जो है वो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही हाँ, नरम कानून है। और अगर फॉर एग्जांपल किसी को पकड़ भी लिया, गिरफ्तार कर भी लिया, तो कानून उन्हें सज़ा सख्त नहीं देंगे। वो एक्चुअली एज ये आपकी बात बिल्कुल सच्ची है। एक इस तरह से है कि हमें अपनी कम्युनिटीज़ को इकट्ठे करके, वैसे आप हमारे सरी में बहुत सालों से रह रहे हैं और सभी कम्युनिटी के साथ आपके ताल्लुकात है, आप हर एक मज़हब के साथ ताल्लुकात रखते हो, तो इस वक्त सारे कम्युनिटी को इकट्ठे होकर यूनिटी शो करना पड़ेगा। हाँ शानी जी, मैं यही आपके थ्रू, और मैं सुबह आज 600 FM में गया था, समीर ने मेरे को बुलाया था। हाँ जी। तो मैं सब कम्युनिटी को रिक्वेस्ट करता हूँ, जी। क्योंकि हम कल को एक मीटिंग भी कर रहे थे, हमने जैसे आपको बताओ अपडेट मैं करता हूँ, कल हमारे बोर्ड की मीटिंग आई थी, जी। तो लकीली हमारा EGM भी कल था, जी। तो काफी क्वेश्चन वहाँ पर रेज हुए, जी। राइट? तो हमने उनको सबको बोला, भाई लुक, लाइक वी अप्रोचिंग द गवर्नमेंट, और हम लेटर भी डालेंगे, सबको डालेंगे, तो अब देखते क्या हो रहा है, क्योंकि जो घटना होगी वो तो हो चुकी है, बट वी हैव टू फर्दर प्रोटेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ द टेंपल टू। ठीक है इट्स जी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। शुक्रिया। तो और हम चाहते हैं भी जो कम्युनिटी, हमारी जो कम्युनिटी है, हाँ क्योंकि जी। जैसे आपने बताया कि मेरे ताल्लुकात जी। सब कम्युनिटी के साथ है। हम आई डोंट बिलीव ऑन कट्टरपना के, मैं बिलीव नहीं करता जी, क्योंकि आई रिस्पेक्ट एवरी कम्युनिटी, ऑब्वियसली। राइट? मेरी जो अपनी पर्सनल लाइफ है, मेरी लाइफ है, मेंबर मेरी वाइफ की, हम एवरी कम्युनिटी में इन्वॉल्व है हम। जी। और एक्चुअली मेरी शादी तो गुरुद्वारा में हुई थी, जी। राइट? तो मैं जो आई डोंट से लाइक वी आर डिफरेंट, वी आर वन टुगेदर। बिल्कुल, हाँ जी, यूनिटी होना बहुत तो जो जरूरी है। लोग, कुछ लोग हैं, जैसे कुछ लोग, आपको भी पता कितने के लोग हैं, जी। वो हर कम्युनिटी में ये जो चीजें कर रहे हैं, जो अटैक कर रहे हैं, इट्स नॉट राइट। और मैं तो देखो कि सच्ची बात हूँ, क्योंकि वी टेक समटाइम स्ट्रॉन्ग भी हम चीज लेते हैं, जी। क्योंकि देखो जो अभी देखो अब जो MP हैं, जो कुछ भी है, आई नो, जो सुख धालीवाल से मेरी बात कर हुई थी, ही कंडेमनिंग दैट, एंड जिन्नी से उनका फोन आया था। अभी तक जो सब पॉलिटिकल लीडर को भी, उनका किसी का फोन नहीं आया मेरे को, शायद मेरे को आएगा, अगर अपडेट दैट, ठीक है। राइट? क्योंकि उनका क्या स्टैंड है, वी वांट टू सी दैट, बिकॉज़ दे आर कम्युनिटी लीडर लाइक अस। हम छोटी कम्युनिटी में इन्वॉल्व है, वो बड़ी कम्युनिटी में इन्वॉल्व है, राइट? तो हम चाहते हैं भी, हम सबको बोलते हैं कि हमारी सपोर्ट करो, ये जो टाइम आ रहा है, हम आगे भी हम लोगों की सपोर्ट करते हैं, हम भी चाहते हैं कि हम भी हमारे के साथ खड़े हो। तो इनको, जो कुछ लोग हैं जो कम्युनिटी में ये इनसे करने की कोशिश करते हैं, उनको रोका जाए किस तरह। सतीश जी, बिफोर आई लेट यू गो, एक बात आपसे ज़रूर पूछना चाहती हूँ कि टुमारो इज़ इंडिया इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त, और हर साल आप लोग सरी मंदिर में, लक्ष्मी नारायण मंदिर में बहुत ही बिग ह्यूज फंक्शन करते हैं। क्या ये जारी रहेगा टुमारो? हाँ नहीं, देखो शायद हमारा टुमारो नहीं है हमारा। हाँ जी। हमारा सिस्टम है कि फॉलो, जब इंडिपेंडेंस डे होता है उसके संडे, नेक्स्ट संडे हम मनाते हैं। सो हाँ जी, 20 तारीख को, 20th को हम मना रहे हैं। हाँ जी। और हम मनाएंगे जैसे आगे मनाते हैं, ठीक है जी। हम उसको रोकेंगे नहीं, क्योंकि जो हम करते आ रहे हैं वो करेंगे हम। थैंक यू सो मच। और कम्युनिटी को कोई और संदेश देना चाहते हो बिफोर यू? मैं तो फिर एक बार कहता हूँ कि सब आगे आए और इकट्ठी होके
जो ये कुछ लोग कर रहे हैं उनको रोका जाए, नहीं हाँ तो जी। रोकेंगे आज मंदिर पे हमला, कल और प्लेसेस पे हमला होगा। शुक्रिया जी, थैंक यू। ये कल। ओके, थैंक यू। थैंक यू। शुक्रिया। ये थे सतीश कुमार जी, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रेसिडेंट है, जिनके ज़ुबानी आपने सुना कि क्या हुआ है, किस तरह से गेट पर और दरवाजे पर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के पोस्टर्स लाए गए हैं। एक वीडियो भी सर्कुलेट हो रहा है जिसमें शक्ल भी नज़र आते हैं दो लोगों का, जो जाकर मंदिर के दरवाज़ा जो है उस पर पोस्टर लगाने की कोशिश करते हैं, और जब उनके स्टेपल्स नहीं काम करते फिर एक जाकर टेप लेकर आता है और उस टेप से उस दरवाजे के ऊपर पोस्टर लाने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं, पोस्टर लगा के जाते हैं। लेकिन वीडियोस में ये ज़रूर दो शक्ल नज़र आते हैं। सरी के लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रेसिडेंट ने ये बात भी कहा कि उन्होंने आरसीएमपी को कॉल किया और आरसीएमपी को बताया कि इस तरह से हादसा हुआ है। पर वैसे भी किसी भी धार्मिक स्थान पर ऐसा करना गलत है, और हमें पता है कनाडा के कानून इतना सख्त नहीं है। हमें पता है कि अगर पुलिस आइडेंटिफाई कर भी ले तो कुछ खास एक्शन नहीं होने वाला, पर हमें इन वीक कानून का फ़ायदा उठा के वो काम नहीं करना चाहिए जो किसी की भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाते हैं। मंदिर होवे, मस्जिद होवे, गुरुद्वारा होवे, चर्च होवे, इन सभी को छोड़ देना चाहिए। ये हमें शोभा नहीं देता। ये काम बहुत ही गलत काम है जो हुआ है। देखते हैं हमारे साथ आज कॉलर्स भी जुड़े हुए हैं, और कॉलर्स को भी हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में। अगर आपने भी मंदिर पर लगाए हुए ये पोस्टर और गेट पर लगाए हुए ये पोस्टर इस बारे में कुछ कहना चाहते हो तो ज़रूर कॉल कर सकते हो, क्योंकि याद रखो ये आज मंदिर के दरवाजे पे लगे हैं, कल गुरुद्वारा के दरवाजे पे भी लग सकता है, मस्जिद के दरवाजे पे भी लग सकता है, चर्च के दरवाजे पे भी लग सकता है। और आज अगर हम इंसानियत के को समझकर इस बात को स्टॉप नहीं करेंगे तो tomorrow it's gonna be a problem. Let's hear what our next caller has to say. Media Waves, hello. हेलो। हाँ जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके से ये जो हिंदू टेम्पल के ऊपर अटैक हुआ है, हाँ जी। तो हम लीगल तरीके से या तो हम प्रेस पासिंग के अंदर हम केस बुक कर सकते हैं, जी। और साथ साथ में वेंडलिज्म के ऊपर भी केस बुक कर सकते हैं। तो ये हम पे भी डिपेंड करता है कि हमारा लॉयर कैसा इसको प्रोसीड करता है। जी। और साथ में ये बात कहना चाहूँगा कि सारी हिंदू कम्युनिटी को आगे आना चाहिए, आगे प्रोटेस्ट करना चाहिए, जी। क्योंकि जो आजकल के जो राजनेता है और पॉलिटिशियंस है जी। वो ये देखते हैं कि नंबर कितने हैं, कितनी वोट की पावर है हमारे पास। अगर हम लोग 500,000 की संख्या में इकट्ठे होंगे और प्रोटेस्ट करेंगे तो उसका जरूर असर होगा, और जो वहाँ का लोकल लीडर है उसको ये पता लगेगा कि हमारे 1000 वोट कटेंगे, 2000 वोट कटेंगे, तो ऐसी घटनाओं पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आप क्या सोचते हैं कि आपकी कम्युनिटी जो है वो इस बात को किस तरह से महसूस कर रहे, एक आम इंसान इस बात को कैसे महसूस कर रहे? आर दे सेफ टू गो टू द मंदिर? आर दे ओके टू गो फॉर द प्रेयर्स कि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है? अगर इस तरह के पोस्टर्स ला के लगा सकते हैं दरवाजे पे और गेट पर, तो कभी भी किसी तरह के हमला भी हो सकता है। ऐसा कुछ सुनने को मिला आपको? बिल्कुल हो सकता है, पहले भी हुआ है। इससे पहले जब किसान आंदोलन था, हाँ जी। उसके नाम पर आपने देखा होगा लोगों पे अटैक हुए थे, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज पे लोग गए थे और वहाँ पे जाके उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। तो ये तो होता रहा है और होता रहेगा। इसका जवाब यही है कि हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और इसका विरोध करना पड़ेगा। शुक्रिया जी। और कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहते हो कि कम्युनिटी किस तरह से रिस्पॉन्स दे इस पोस्टर्स की? जैसे मैंने पहले कहा कि प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और सामने खड़ा होना पड़ेगा। डिफेंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम अगर सामने खड़ा होंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ हवाबाजी है खालिस्तान की, और ये सब ठीक हो जाएगी। शुक्रिया जी, थैंक यू। प्रोग्राम में दोस्तों आप भी ज़रूर शामिल हो सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं। मंदिर पे जो लगाए हुए पोस्टर्स है उसके बारे में आप क्या सोच रख रहे हो, आपका क्या कहना है इस मंदिर पर गेट पर पोस्टर लगाना और दरवाजे पर पोस्टर लगाना? अगर आप हमारे प्रोग्राम अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आपको हम दोनों पोस्टर्स दिखा रहे हैं। पहला जो पोस्टर है वो गेट पे लगा हुआ है, और उसके नीचे जो पोस्टर है वो दरवाजे पर, मंदिर के दरवाजे पे लगाया गया है। यानी गेट से एंटर होकर दरवाजे तक इनका पहुँच हो चुका है।
इस बारे में क्या कहना चाहते हो? एरिया कोड 604-449-4444. Let's hear what our next caller has to say. 8719. Hello. हेलो जी हाँ जी, बोलिए जी. हेलो, ਤੁਸੀਂ ऑन एयर हो जी? खैर, अगर आप हमें कॉल करते हैं तो मेक श्योर प्लीज़ डू स्पीक विद अस, बिकॉज आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लिए नहीं, लेकिन लोअर मेनलैंड में जितने भी कम्युनिटीज़ है उन सभी के लिए ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसा से मैंने पहले भी कहा कि इस तरह के पोस्टर्स कल को हमारे गुरुद्वारा में भी लग सकता है, कल को हमारे और जो रिलीजियस संस्था है उथे भी एक्चुअली ये पोस्टर्स लगाया जा सकता है. आपका क्या विचार है इसमें? इस पोस्टर को देखकर आप किस तरह से महसूस कर रहे हो, वो फीलिंग क्या है, उसके लिए ज़रूर कॉल कीजिए और बातचीत कीजिए. लेट्स सी व्हाट आवर नेक्स्ट कॉलर हैज़ टू से. मीडिया वेव्स, हेलो. हेलो हाँ जी. या ये जो घटना हुई है कि जो हिंदू टेंपल पे ये पोस्टर लगाए हैं, हाँ जी. जी. बाकी जगह भी हुई है ओंटारियो वगैरह में. हाँ अगर जी. उस समय भी हमने वो रोका जाता और जो उस समय वो सारे हिंदू कम्युनिटी नहीं, सारी कम्युनिटी मिलके जी. अगर इसका विरोध करें, क्योंकि ये कल आज यहाँ हुआ है तो कल कहीं भी हो सकता है, जैसे आप लोगों ने बोला है, और एब्सोल्युटली. ये बहुत बड़ी बात है. जी और अगर हम इकट्ठे नहीं हुए तो जी. इट्स गोइंग टू बी लार्जर रूप उसका हो जाएगा. जी. तो इसलिए हमें सबको इकट्ठा होके, जी. इकट्ठा मिलकर सब आपस में बात करके इन चीज को रोकना चाहिए. हम्म. और एक लॉ की ऑलरेडी पिटिशन हुई है. मैं सबको गुजारिश यही करूंगा, हम्म. हिंदू फोबिया का पिटिशन ऑलरेडी चल रही है. 50,000 पीपल ऑलरेडी उसको साइन अप कर चुके हैं. हम्म. Once we have the law, then no community or nobody can do anybody's religion or anybody's caste जी. remarks और इस तरह की चीजें. जी. मैं सारी कम्युनिटी से दोबारा अपील करता हूँ कि सब मिलके आपस में इसको सॉल्व करें और इकट्ठे हों, ताकि लोगों को लगे कि इज नॉट ए स्मॉल थिंग, जी. इज ए बिगर फॉर आवर सेंटिमेंट. हम्म. जो हमारी चीजों को, हमारी जो आस्था है उसको ठेस पहुंचाना इज नॉट ए गुड. शुक्रिया जी. धन्यवाद. थैंक यू. धन्यवाद. प्रोग्राम में आप भी ज़रूर शामिल हो सकते हैं दोस्तों. एरिया कोड 604-449-4444. जो पोस्टर्स लगाए गए सरी में लक्ष्मी नारायण मंदिर पर, उसके बारे में आप अगर बातचीत करना चाहते हो, बिकॉज इट इज़ समथिंग दैट वी एज अ मीडिया आर जी. वेरी कंसर्न. क्योंकि वैसे दीदी आपको पता है कि इस तरह के हरकतें जो करते हैं वो लोग बुज़दिल होते हैं. बिल्कुल. ऐसे काम किसी के भी धार्मिक संस्था पे करना बहुत ही गलत है और इसे हम ज़रूर कॉन्डेम करते हैं मीडिया वेव्स के प्लेटफॉर्म से कि इस तरह के हरकत करना सही नहीं है. कोई भी बातचीत है, टेबल पे बैठकर हर एक मसले सॉल्व हो सकते हैं. किसी के दिल में अंदर है कुछ खलिश है कि इसके वजह से ये हुआ है या इसके वजह से ये हुआ है, कोई बात है तो वो मंदिर के प्रेसिडेंट और मंदिर के बोर्ड मेंबर्स के साथ बैठ के बात कर सकते हैं. जी. There is always communication is the main key. बैठो, बताओ कि आपके दिल के अंदर क्या है, उस मैल को साफ करो, उस बात को सॉल्व करो, rather than putting these kind of posters at the door of the मंदिर or putting these kind of posters at the gate of the मंदिर. कई लोग जाते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, ये गलत बात है. इस तरह के पोस्टर्स बहुत इधर उधर लगाए. वैसे दीदी आप भी ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, हाँ जी. ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਆ. हाँ जी. ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ हाँ जी. ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਬਿਲਕੁਲ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂ ਆਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ. बिल्कुल. ਔਰ ਇਸ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਫਿਰ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ. बिल्कुल. लेट्स सी व्हाट आवर कॉलर्स हैव टू से. मीडिया वेव्स, हेलो. हेलो हाँ जी. जी. बोलिए जी. जी. हाँ जी. मैं ये मानता हूँ
हाँ जी, कनाडा का संविधान हर एक को आजादी देता है हाँ जी, अभिव्यक्ति की। हाँ हाँ, हमें धार्मिक आजादी है। जिन्होंने इस तरह का घिनौना काम किया है, उन्होंने केवल हिंदू समुदाय के लिए नहीं किया है, केवल सभी के हिंदू टेंपल के लिए नहीं किया है, उन्होंने कनाडा के संविधान पर आंच डाली है, नींव को तोड़ने का प्रयास किया है। जी। और आशाना जी और कुलवंत जी, आप लोगों का मैं बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि जब और मीडिया मुंह में चुप्पी लगा के बैठा है, आप खुल करके बातों को लेके आ रहे हैं। कैसा रहेगा अगर इस तरह के पोस्टर और धार्मिक संस्थानों में लगाए जाएं? कैसी प्रतिक्रिया आएगी? क्या धार्मिक संस्थान राजनीति के अड्डे बन जाएंगे, हिंसा के अड्डे बन जाएंगे? कितने लोगों की कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी? या जो हिंदुस्तान में हो रहा है या दुनिया के और मुल्कों में हो रहा है, उसकी प्रतिक्रिया यहाँ हमें भुगतनी होगी? क्या उसकी ध्वनि यहाँ सुनाई देगी? मेरा ये मानना है कि जो रात के अंधेरे में शरारती तत्व ये कार्य करके गए हैं, उनसे बड़ा बुज़दिल कोई नहीं है, उनसे बड़ा कौम का दुश्मन कोई नहीं है। और ये सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं है, ये कनाडा के हर समुदाय के लिए, कनाडा के संविधान के ढांचे के लिए जरूरी है ऐसी ताकतों का जो कि बहुत ही अल्पसंख्यक में है, लेकिन आतंकवाद के जरिए वो लोगों को डराना चाहते हैं, भयभीत करना चाहते हैं। हम इतनी आवाज बुलंद करें कि उनको समझ में आ जाए कि चूहे हो तुम, चूहे हो, शेर तो हम हैं, जो बहुत शांत प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तुम हो जो रात के अंधेरे में पोस्टर लगा के गए हो, तुमने सांप्रदायिक माहौल को खराब करने का प्रयास किया है। तुम किसी भी कौम के, किसी भी धर्म के सच्चे सेवक नहीं हो सकते। और आपका और सरदारनी जी का मैं बहुत बहुत कायल हूँ कि आप इस तरह का प्रोग्राम लेके आए हैं और आपने अगुवाई में ये बात कही है और ये आगे तक बात जाएगी। आप शुक्रिया जी, थैंक यू। हमारा मकसद ये है कि हमारे शहर में कुछ भी हो, हम अपने लिसनर्स के साथ छुपाते नहीं हैं, हम उसको पॉलिश करके नहीं बताते, वो बात जिस तरह से है उसी तरह से बताते हैं। और बहुत दुख हुआ जब हम लोगों ने ये पोस्टर देखा। कल हमारा पूरा दिन इसी पोस्टर के डिस्कशन में निकल गई कि किस तरह से लोग इस तरह के हरकत करते हैं। और जो लोग इस तरह के हरकत करते हैं दीदी, उनके कोई ज़मीर नहीं होती। कोई इस तरह के हरकत करके ये सोच रहा है कि वो कुछ हासिल कर लेगा, तो ये गलत बात है। क्योंकि कनाडा ऐसा मुल्क है, डाइवर्स मुल्क है, जहाँ पर हर कम्युनिटी एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। और आज ये पोस्टर मंदिर पे लगा है, जिस तरह से मैंने कहा, कल गुरुद्वारा में भी लग सकता है, मस्जिद में भी लग सकता है, चर्च में भी लग सकता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, एक दूसरे के साथ देकर इस मामले को यहीं पर ख़त्म करना हम लोगों के इंसानियत का फ़र्ज़ है, एंड वी शुड डू इट। मेरे बहुत सारे कॉलर्स हैं, देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर क्या कहना चाहते हैं। और साथ साथ इस पोस्टर को लगाने के बाद जो हमारे यूथ, यंग बच्चों के जो कंसर्न्स है, उसके बारे में भी आज हम प्रोग्राम में ज़रूर जिक्र करेंगे। सुनते रहिए www.mwlive.ca। मीडिया वेव्स, हेलो हेलो 4956, हेलो। मेरे ख्याल से जब आप कॉल करते तो प्लीज स्टे ऑन द लाइन। मीडिया वेव्स 6359, हेलो हेलो। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया और आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आपने इस टॉपिक के ऊपर बात लेकर आए हैं, क्योंकि ये बहुत ही गलत हो रहा है जो कर रहे हैं। हाँ मतलब चलो आप ये देख रहे हो कि आप सोच रहे हैं कि आप मंदिर के साथ ऐसे कर रहे हैं, तो लेकिन आप जो है सिख कौम के कितने अच्छे अच्छे लोग हैं जो इतना सबकी मदद करते हैं, इस तरीके से आप उनकी छवि भी बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में उसके अलावा आप कनाडा की भी छवि बिगाड़ रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके की चीजें होती हैं। तो अगर कोई बात है, जैसे आपने कहा, कोई भी मसला है, तो वो आमने सामने बैठ करके बात हो सकती है, उसको ऐसे सुलझाएं। इस तरीके से छुप के और हुडी पहन के इस तरीके के काम करने से दबी रात को उससे कुछ सॉल्व तो होगा नहीं। तो इसलिए ऐसा है कि हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ें, ना कि प्रॉब्लम को और बढ़ाएं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच।
अगेन मैं आपका बहुत थैंक यू आपका जी और सरदार जी का भी कि आपने इस बात को उठा करके लेकर के आए हैं, और ये बहुत ही अहम बात है जिसके साथ में जैसे आपने कहा कि किसी भी और इंस्टीट्यूशन के साथ हो सकता है, तो हमको सबको मिलकर आगे बढ़ना है। बिल्कुल। हम इस देश में आए हैं खुद को और अपने परिवार और अपनी पूरी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए, बिल्कुल। ना कि किसी का नाम बिगाड़ने के लिए या किसी को खराब करने के लिए। शुक्रिया धन्यवाद। जी, थैंक यू। शुक्रिया। प्रोग्राम में दोस्तों आप भी ज़रूर शामिल हो सकते हैं। सरी लक्ष्मी नारायण मंदिर पर गेट पर जो पोस्टर लगाया गया है, दरवाजे पे जो पोस्टर लगाया गया है, इस पोस्टर के बारे में आपका क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? किस तरह से महसूस कर रहे हैं? चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, लेकिन मंदिर में इस तरह के पोस्टर्स लगाना, हो सकता है कल को आपके रिलीजियस प्लेस पर भी ऐसा ही पोस्टर लगे मिले आपको, तो आप क्या महसूस करोगे? मेरी दीदी बहुत सारे अपने सिख कम्युनिटी के लोगों के साथ कल बात हुई, मुसलमान कम्युनिटी के साथ बात हुई, और सारे इस बात को निंदा कर रहे हैं। कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, ये एक इमेज ख़राब करने वाली गल है कि हम लोग यहाँ इस मुल्क में इतने यूनिटी के साथ रहते हैं, सभी धर्म बड़े एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, और किसी भी धार्मिक स्थान पर जाकर इस तरह के पोस्टर लगाना ये बुज़दिलों का काम है, ये इंसानियत के काम नहीं है। खैर, देखते हैं नेक्स्ट कॉलर क्या कहते हैं। मीडिया वेव्स, हेलो। हेलो मीडिया वेव्स 3867, हेलो। हेलो 3867। हाँ पहले तो बहुत आपका धन्यवाद जो आप ये शो लेके आई, और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कम से कम इसकी बात हो रही है, और ये बहुत ही निंदनीय है और अच्छा नहीं लगता कि आप किसी भी धर्म के अगेंस्ट जाके करो। मंदिर में या गुरुद्वारे में लोग चप्पल बाहर उतार के जाते हैं जी। और ये लोगों ने ऐसी हरकत करी है कि एक कम्युनिटी को टारगेट करके जहां वो पूजा करते, जहां जिनकी आस्था है, वहां जाके ऐसे टारगेटेड पोस्टर लगा रहे। उससे वो क्या हासिल करेंगे? भगवान ऊपर से देख रहा है। अगर वो भगवान के मानने वाले हैं, गुरु जी के मानने वाले हैं, तो वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। अगर वो बच्चे शिक्षित थे, अगर वो उनके मम्मी पापा ने सही दिशा में उनको राह दिखाया होता, तो वो कभी ऐसी नहीं करेंगे। चाहे उन्होंने पैसे के लिए किया या फ्री में किया, उससे मतलब नहीं है। किसी भी धर्म के लिए वो नहीं जाते ऐसा। आपको गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट को बोलो, लेकिन किसी कम्युनिटी जो वहाँ सरी में इतनी बड़ी कम्युनिटी है, इतने मिलजुल के रहते हैं, बिजनेसेस है, भाईचारा है, एक दूसरे की गुरुद्वारे मंदिर में सभी आते जाते हैं। क्यों तनाव पैदा करना है? क्यों दरार पैदा करना है? पहले ही लोगों के पास टेंशन कम है। अब जो लोग भी ये करवा रहे हैं, वो क्या चाहते हैं कि उनके घर तक भी आग पहुंचे? नहीं ना। तो उन्हें ये सब चीजें रोकना चाहिए। इसके और भी रास्ते हैं, मिलजुल के साथ रहो, आगे बढ़ो। ठीक है, देश छोड़िए अगर भारत, तो वो हरकत भी छोड़ो। जो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग आज भी वही गंदगी लेके आए हैं और वही गंदगी फैला रहे हैं, तो उससे क्या हासिल होगा? फिर कनाडा आने का क्या लॉजिक है और कनाडा आने का क्या फायदा है जब आपकी मेंटालिटी नहीं बढ़ी? आपने एक बात कहा कि जो करवा रहे हैं, आप क्या सोचते हैं कि जो लोग वीडियो में नजर आ रहे हैं ये दोनों, इनके पीछे कोई और लोग हैं जो ये काम करवा रहे हैं? ये तो स्वाभाविक है कि वो दो बच्चे जो दिख रहे हैं, मान लो 20, 21, 22, 25, 30 साल के होंगे। एक लड़की लग रही है उस वीडियो में बिल्कुल क्लियरली। तो उनकी हिम्मत कैसे आई? या तो उनको रेडिकलाइज करा गया, या फिर उनको पैसे दिए गए, जो चाहे वो किसी मजबूरी में करे, चाहे वो मुफ्त में करे हो, लेकिन उन्होंने वो काम किया। मैंने पहले ही बोला इस कॉल के शुरुआत में कि लोग मंदिर गुरुद्वारे में चप्पल उतार के बाहर जाते हैं ना। सही बात है ना, मत्था टेकने चप्पल तक बाहर उतार के जाते हैं। तो ये जो दो बच्चे हैं, ये कैसे वहां तक पहुंच गए? जब तक पीछे से किसी ने इनको माइंड वॉश नहीं किया होगा, या ब्रेन वॉश नहीं किया होगा, या पैसे नहीं दिए होंगे, या कुछ तो किया होगा जिस वजह से ये रात के अंधेरे में जाके ऐसी हरकत कर रहे हैं, जो बहुत ही शर्मनाक है। हमारी यूथ को क्या वो मिलेगी? क्या मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है। ये इनको देख के लोग और भी ऐसा चीजें करने की होंगे, जबकि इसका अंत या ये कहीं भी एक डेड एंड पे जाता है ऐसी चीजें। शुक्रिया जी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच।
प्रोग्राम में दोस्तों आप भी ज़रूर शामिल हो सकते हैं। आप भी बता सकते हैं कि आपका क्या सोच है इस तरह के पोस्टर्स देखकर एट द मंदिर। और बहुत लोगों के अंदर बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, अग्रेसिव हुए हैं लोग कि इस तरह की हरकतें धार्मिक स्थान पर नहीं होना चाहिए। धार्मिक स्थान पर हम लोग जाते हैं पीस ढूंढने के लिए और अपने मन की शांति के लिए, और वहाँ पर अगर इस तरह के हरकतें होना शुरू हो जाए तो इस मुल्क में भी हम बहुत कुछ ऐसे देखने जा रहे हैं जो गलत है, जो हम नहीं चाहते इस मुल्क में होवे। बिल्कुल सही पिछले कॉलर ने कहा कि सरकार के साथ आपकी कोई भी दुश्मनी हो सकती है, क्योंकि पॉलिटिकल व्यूज़ हर किसी के अपने अलग अलग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अलग अलग है। सरकार के जो काम है उसमें अगर आप धार्मिक स्थान को शामिल करना शुरू कर दो और इस तरह की हरकतें शुरू कर दो, it's not gonna work. Let's hear what our next caller has to say. Media Waves, hello. हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। 9969। आशाना जी। हाँ जी। आशाना जी, थैंक यू सो मच। पूरे मीडिया में मैंने देखा सिर्फ आपने इस आवाज को उठाया है, बाकी सब लोग चुप हैं और उसका साथ दे रहे हैं। मैं तो इतनी हैरान हूँ कि मीडिया कैसे इतनी अंधी हो सकती है, लोग कैसे अंधे हो सकते हैं कि हर जगह पर पोस्टर लगे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा। वो कहते ना मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये कौन सा मजहब है जो तुम इंसान को इंसान का दुश्मन बना रहे हो? ये चंद लोग हैं जो कर रहे हैं, बाकी सब नहीं है। लेकिन वो लोग जो हैं वो किसी चीज के शिकार हैं या पैसे चाहिए उनको। और स्टूडेंट जो यहाँ आते हैं वो ये नहीं सोचते वो अपना फ्यूचर बनाने आए या फ्यूचर खराब करने आए हैं। और जो लड़की उस पिक्चर में दिख रही है, कई लोग उसको जानते भी हैं, लोग डिस्कस भी कर रहे हैं कि हमने उस लड़की को हम जानते हैं और हमने उसको देखा है, उसकी शक्ल भी देखी, सब कुछ देखा है। अब आप सोचो उसने अपने फ्यूचर के लिए उसने कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया है। किस लिए? आपस में झगड़ा करवाने के लिए। आप ये तो सोचो कि आप क्या कर रहे हो। जो कम्युनिटी अब इंडिया से आप इधर आ गए हो, आपको किसी से भी दुश्मनी हो सकती है, ठीक है। आप इस जमीन पर खा रहे हो, पी रहे हो और यहाँ के लोगों के दिमाग को प्रदूषित कर रहे हो, यहाँ रहने वालों की जिंदगी को प्रदूषित कर रहे हो। तुम्हारे कोई भी व्यूज हो सकते हैं, तुम नहीं मानो इंडिया को अपनी कंट्री, तुम जो मर्जी करो, लेकिन तुम अब इस देश में आ गए हो, इस देश में तो शांति बना सकते हो ना। बिल्कुल। हम तो सारी कैनेडियन हैं, तुम क्यों एक दूसरे का घर खराब करने में तुले? और फिर मंदिर जैसी जगह जहाँ पर लोग इतनी पवित्र, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, यहाँ तो लोग अपने मन से जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, अपने मन की बात रखते हैं। तुम उसी को जाकर के बदनाम कर रहे हो, उसी को खराब करने में लगे हो। भगवान तो एक ही है ना, चाहे जो भी है। तुम्हारा भगवान अच्छा किसी का खराब तो नहीं हो सकता। तो ये सब चीजें मुझे समझ में नहीं आता और कोई बोल नहीं रहा शना जी कि ये क्यों लगा रहे हो। क्या तुमने देखा है किसी को ऐसा करते हुए? इसका क्या मतलब है? कुछ तो सोचो, आगे वाली पीढ़ी को कुछ तो अच्छी शिक्षा दो, कुछ तो अच्छा बताओ कि आपस में बैर ना रखे, मिलजुल के रहे। हमने आपस में बिजनेस करना है, आपस में बातचीत करनी है। रहना मुश्किल हो जाएगा अगर इस तरह का माहौल होगा। तो मैं तो बहुत निंदा करती हूँ इस चीज का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने बिल्कुल ये ज्वलंत टॉपिक लेकर आए और बिल्कुल सही समाज में जो हो रहा है उसको आप उधेड़ कर ला रहे हो और सबके सामने रख रहे हो। थैंक यू सो मच। वैसे आपके जाने से पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आप ज़रूर अपने जो RCMP है उन्हें फ़ोन करके बताइए कि अगर आप लोगों को किसी पर भी सस्पेक्ट है, सस्पिशियस है, आप लोग के इस शक्ल किसी से मिलती जुलती है, तो उसके बारे में बात ज़रूर पुलिस फोर्स तक पहुँचाइए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो भी लोग हैं ये ज़रूर पकड़े जाना चाहिए। वैसे पहले भी मैंने कहा कि हमारे कनाडा के मुल्क के कानून बहुत ही सॉफ्ट है, लेकिन फिर भी इन लोगों को ज़रूर सामने लाना चाहिए कि ये लोग जो है वो हमारे यूनिटी जो कनाडा में है, हम सभी मज़हब का, उसे ख़राब करने में लगे हुए हैं। तो इन लोगों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है RCMP को कॉल करके ज़रूर बताइएगा जी। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए दोस्तों एरिया कोड है 604-449-4444 मीडिया वेव्स। हेलो। हेलो। हाँ जी। आशाना जी, सब तो पहले तो मैं बता सिंह चीता बोलता जी। शुक्रिया जी, थैंक यू। हाँ जी, मैं कुछ कमेंट्स देने चाहना है। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਵਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ
ਜੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਦਾਈ ਕਮਲੇ ਜਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਈਸਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਜ ਵੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਹੈ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਗਰੀਬ ਦੀ, ਗੁਰਬੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਬਾਉਣਾ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਗਾਹ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਦਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀਡ ਅਵੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਹੋਰ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਰਪਸ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੀਬੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖੀਏ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚ ਇੱਥੇ 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਆ, ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਦੇ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਜਾਈਏ, ਇਤਨੇ ਉਕਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ
ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਸਨ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਜ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਰੋਲ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਯੋਗ ਯਤਨਸ਼ੀਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो मैं ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੀਪ ਅਪ ਦ ਗੁੱਡ ਵਰਕ ਐਂਡ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੂਲ ਡਾਊਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਖਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਇੰਨੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਯੋਗ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। शुक्रिया। इट्स सो नाइस एंड सो ब्यूटीफुल वे इन्होंने कहा कि जो सिख रिलीजन है दीदी, बिल्कुल वो बहुत ही हम्बल तरीके से ज़िंदगी बिताने के बारे में टीच करते हैं। एंड वी आर सो हैप्पी एंड प्राउड कि हम सिख रिलीजन के दरमियान रहते हैं। और सबसे पहली बात तो मैं अक्सर ये बात बोलती हूँ, हर कौम के साथ मैं ये बात डिस्कस करती हूँ कि सिख रिलीजन एक ऐसा रिलीजन है जहाँ पर कोई भी जाता है बगैर लंगर के वहाँ से वापस नहीं आते। चाहे कितने बजे भी आप जाओ, दे आर द वंस हु फीड यू, दे आर द वंस हु वांट टू मेक यू रियलाइज कि जिंदगी में इंसानियत बाकी है। ये वो रिलीजन है। और उस रिलीजन को अगर इस्तेमाल करके इस तरह की हरकतें कर रहे हो, ये बहुत ही गलत बात है। इट्स अ रॉन्ग टीचिंग। मैं बहुत छोटी थी तो मुझे मेरे उर्दू टीचर ने एक शेर सिखाया था और वो आज भी मेरे साथ हमेशा हमेशा मैं याद रखती हूँ। कहते थे कि मेरे आशियाँ का तो कुछ नहीं कि वो जल रहा है जला करे, मेरे आशियाँ का तो कुछ नहीं कि वो जल रहा है जला करे, मगर इन हवाओं को रोकिए कि चमन सारे जहाँ का है। तो इस तरह की हरकतें मीडिया वेव्स के प्लेटफॉर्म से हम कॉन्डेम करते हैं, ये बहुत गलत है। और हम सारे मजहब को इकट्ठे होकर इस हरकत को कॉन्डेम करना चाहिए। लेट्स हियर व्हाट आवर नेक्स्ट कॉलर हैज टू से। मीडिया वेव्स, हेलो हेलो मीडिया वेव्स। हेलो हाँ जी, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, सत श्री अकाल, खालसा फतेह भैन जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। हाँ जी भैन जी, मैं असल च ना ਕੰਮ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰਸ ਲਗਾਉਣਾ ਔਰ ਵੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ। ਪੋਸਟਰ ਭੈਣ ਜੀ ਕਾਹਦੇ ਲਾਏ? ਪੋਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਾਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੀ ਲਾਏ ਭੈਣ? ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਇਆ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੇਨ ਡੋਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਔਰ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਸੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗੈਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾੜਾ। ਬਾਕੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀਬ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਠੀਕ ਆ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਖੁਦ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਂਝੀ ਲਾਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਉੱਥੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਕਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੋਚ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਉਸ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਸਲਟ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਤੋੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ। ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਪਹੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਗਾਂਹ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਅਰ ਮੈਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਆ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੀ ਓਪਨਲੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜੀ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਤਲ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੋਡਰੇਟ ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇਹ ਜਿਹੇ 2 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮਰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੱਭੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਲੱਭੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ $10,000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਸੀਗੇ ਰੇਸਿਸਟ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੱਲ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤ ਤੋਂ ਗਤਵਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਓਪਨਲੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸਲੀ ਕਾਤਲ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਬਲ ਖੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਇੰਡੀਆ, ਰਸ਼ੀਆ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਚਰਚਸ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਈ ਔਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਦੂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝ ਹੈ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹ ਨਿਰੀ ਪੂਰੀ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਈਸਾਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ 2 ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ, ਉਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਰੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਕੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਆਸ ਕੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਭਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਉਹ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਹੋਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ नहीं है ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ क्यों इजाज़त होवे। एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी दीदी कि हमारे कैनेडियन लॉ के मुताबिक भी और पूरी दुनिया के अगर आप कानून के मुताबिक भी देखो तो ये जो पोस्टर है जिसमें हरदीप सिंह निज्जर की तस्वीर लगा हुआ है और उसके नीचे लिखा है असैसिनेशन हाई कमीशन ऑफ इंडिया ऑटवा कनाडा, और उसके अंडर 3 तस्वीरें हैं। अप्सरा श्रीवास्तव जो कौंसल जनरल है,
संजय कुमार वर्मा जो चीफ कमिश्नर है, एंड देन मनीष जो काउंसल जनरल है, वांटेड, ये पोस्टर लगे हुए हैं हर थाते। ये बहुत ही गलत है। पहली बात तो ये तीनों हर किसी को पता है, इस मुल्क के कानून को भी पता है और भारत के कानून को भी पता है कि ये लोग है कहाँ। अगर ये तीनों जिम्मेदार है तो इनको पुलिस आज ही फड़ सकते हैं, पर इस तरह के पोस्टर लगाकर बाहर इनकी इमेज खराब करना, ये क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं। ये गलत है। जो भी इस पोस्टर को सर्कुलेट कर रहा है, जो भी ये पोस्टर बाहर लगा रहा है, ये बहुत ही गलत है। क्रिमिनली चार्ज हो सकते हो आप, जो भी रिस्पॉन्सिबल है इस पोस्टर को लगाने को। और ये हाई कमिश्नर और काउंसलर जनरल है जो यहाँ हमारे मुल्क में सेवाएं दे रही हैं, सिर्फ इंडियंस को नहीं लेकिन कैनेडियंस को। याद रखो, इस तरह के पोस्टर्स बाहर निकालना, और अगर जो जिम्मेदार है इसका वो लग जाए तो उस पर क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं। इस पोस्टर के बारे में एक बात जरूर मैं करना चाहती हूँ। कल मैं अपने ग्रेड 11 ग्रेड 12 स्टूडेंट्स से बात कर रही थी, तो वहाँ पर ये पोस्टर की जिक्र हो गई। तो वो कहते कि आप मीडिया में हैं, आपसे सवाल करते हैं, लड़कियां पूछ रही मुझसे, कहते कि 3 लोग हैं उस पोस्टर में जो हर जगह पर हम देख रहे हैं, हमारे स्कूल के पास भी लगा हुआ है, हमारे घरों के पास लगा हुआ है। इस पोस्टर में हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया का तस्वीर है और काउंसल जनरल का तस्वीर है। तो इनको पुलिस पकड़ क्यों नहीं रहे जो रिस्पॉन्सिबल है टेम्पल के प्रेसिडेंट के मर्डर के लिए, असैसिनेशन के लिए? तो इनको पुलिस क्यों नहीं पकड़ रहे? आप मीडिया में आप हमें बताइए। अब बच्चे इस पोस्टर को देखकर इस तरह से महसूस कर रहे हैं, इस तरह से उनको समझ आ रही है कि ये लोग जिम्मेदार हैं, दे आर द वंस जिनके वजह से ये हरकतें हुई है और वो जिम्मेदार है इस बात की। जस्ट इमेजिन कि बच्चों को क्या लेसन दिया जा रहा है, यूथ को किस तरह से बहकाया जा रहा है इस पोस्टर को दिखा के। वो तो कैनेडियन बच्चे हैं, उनको ये है कि ये तीनों, एक हाई कमिश्नर है, 2 काउंसल जनरल है, क्या पुलिस इनको फड़ नहीं सकते? दिस इज एक्चुअली द क्वेश्चन दे आस्क्ड मी। फिर मुझे उन्हें बैठाकर समझाना पड़ा कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड एट द गुरुद्वारा, और प्रेसिडेंट का किस तरह से कत्ल हुआ, और प्रेसिडेंट के कत्ल होने से पहले हमारे इंटेलिजेंस को पता था कि इसको लाइफ डेंजर में है, लेकिन पुलिस ने उसको कोई प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया। ये सारी बातें मैंने उनको एक्सप्लेन किया, और उसके बाद में मैंने उन्हें बताया कि ये जो 3 लोगों की तस्वीर है, काउंसल जनरल और जो हाई कमिश्नर है, वो हमारे मुल्क में आकर हमारे सेवा कर रहे हैं कैनेडियंस की, और उनके बारे में इस तरह से पोस्टर, ये गलत है। दैट्स व्हेन दे फिगर्ड आउट कि ये एक्चुअली क्या पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है। तो इस तरह से बच्चे जो बाहर देखते हैं या कैनेडियंस जो बाहर देखते हैं, जिनको इंडिया के बारे में कोई पता नहीं है, दे हैव नो नॉलेज के पॉलिटिकल किस तरह से ये बातें हुई है, या हमारे सिख रिलीजन में ये जो कत्ल हुआ है हरदीप सिंह निज्जर का, उससे पहले मलिक साहब का जो कत्ल हुआ, बहुत सारे इस तरह के कत्ल क्वेश्चनेबल है, जिसके वजह से ये बच्चे नहीं समझते, इनको नहीं मालूम, ये दे डोंट नो द हिस्ट्री, लेकिन एक गलत मैसेज बाहर कैनेडियंस को जा रहे हैं इस तरह के पोस्टर लगाने को। सो आई थिंक कि हमारे जो लिसनर्स है उनको इन पोस्टर्स की कंडेम करना चाहिए कि ये पोस्टर्स नहीं लगा होना चाहिए। जस्ट इमेजिन हमारे मुल्क से हाई कमीशन कई और मुल्क में जाते हैं, उनके बारे में अगर उस मुल्क में कोई हादसा हो जाता है, उनके हमारे कैनेडियन हाई कमिश्नर और कैनेडियन काउंसिल जनरल लोगों के तस्वीरें इस तरह से लगा लगा के बाहर उस मुल्क में डिस्प्ले करेंगे, तो हाउ आर वी गोना फील अबाउट इट? अच्छा ने इत्थे कल एक गल होर भी है तवज्जो देण दी, चंगी तरह ध्यान नाल तवज्जो दे लेना चाहिए, जिहदी गल अपने ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ने भी की सी कि सानू देखना चाहिए है कि जिहड़ी पुलिस है उसकी रिपोर्ट की आउंदी है, जिम्मेवार व्यक्ति नूं लभे जाण तक
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ 2-4 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਠਾਏ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਖਤਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਜਿਊਰੀ ਖੁਦ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ। ਸਬੂਤ ਕੁਛ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰਨੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰੀ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਸੋਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਤਰੱਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਵਰਤਣ ਨੂੰ, ਹਾਰਮਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, which makes sense। जी बिल्कुल। We have some callers. Let's hear what our callers have to say. Media Waves, hello। जी नमस्कार जी, आशीर्वाद। नमस्कार जी, क्या हाल है आपके? जी बढ़िया दीदी, राम राम जी। राम राम। कैसे हैं आप लोग? सॉरी मैं आज चाहता था लेकिन मैं आप बहुत देर से मैं प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बहुत लोगों ने कहा। हाँ जी। एक बात निकल कर आई जी। आपकी आवाज थोड़ा ब्रेक हो रही है। जी अब आ रही है? हाँ जी, अब बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, तो मैं सबसे पहले सभी लोगों को ये कहूंगा कि सभी लोगों ने इस चीज को कॉन्डेम करा कि मंदिर पे जो ये हुआ जी, तो कॉन्डेम करा। थोड़ा सा मैं जो है ना आशाना जी इसको आगे लेके जाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी हो रहा है, और आपने अभी, मैं आपकी पूरी बात सुन रहा था, कंटिन्यूस आपके साथ हूँ मैं। हाँ जी। सुन रहा था, आपने कहा बच्चों वाली, बेटियों वाली बात बताई कि किसी ने आपसे पूछा, तो ये जिन लोगों ने भी लगाए हैं, जो भी लगा रहे हैं, दे हैव अ, मतलब मैं तो ये कहूँगा एवरीबॉडी हैज अ राइट फॉर एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन। हाँ जी। लेकिन एज लॉन्ग एज आप दूसरे के राइट का उल्लंघन ना करें। बिल्कुल। तो सभी लोगों को दुख हुआ जो गुरुद्वारे के अंदर कुछ लोग मर्डर कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे भाई इंडियन गवर्नमेंट ने एसिनेशन करवाया। सारी बातें मतलब नोबडी नोज व्हाट इज द ट्रुथ एक्चुअली। सब लोग अपने अपने आंकलन लगा रहे हैं। अच्छा, और उसके बेसिस पे एजिटेशंस भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और मैं ये कहूँगा भाई जो एजिटेशन कर रहे हैं उनका भी एक राइट है एजिटेशन करने का। सो एज लॉन्ग एज आप किसी और को उस एजिटेशन से परेशान ना करें या किसी और के राइट्स का उल्लंघन ना करें। अब जैसा कि ये हुआ मंदिर में आकर, देखिए हम उस सारी मंदिर में सभी लोग हम लोग जाते हैं, तो वी फेल्ट बैड बिकॉज उस मंदिर में हम लोग जाते हैं तो हमें दुख होता है कि भाई हमसे क्या मतलब है। आप अगर मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट ने करा, वी आर ऑल कैनेडियंस यार, पहली बात तो मालूम ही नहीं है, ठीक है। आप भी कंडेम कर रही हैं कि उनके जो पोस्टर्स लगाए हुए इंडियन ऑफिशियल्स जो है उनके 3 जनों के पोस्टर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। मैंने भी उस पोस्टर्स को देखा, सभी लोग उसको देख रहे हैं, बहुत गलत। वो भी बिल्कुल, सी आई कंडेम दैट ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड भी उनका राइट है। तो आप अपने इलाके में या अपने घरों पे लगाना चाहते हैं, लेकिन हो क्या रहा है, जो असली बात कहना चाह रहा हूँ, आप यहाँ पे रेफरेंडम करिए, आप यहाँ पे इलेक्शन करवा लीजिए, जो चाहे करवा लीजिए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जहाँ जो करना चाहते हैं करिए। लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन है मेरा उन सभी लोगों से, इसका इंडिया पे क्या असर पड़ने जा रहा है? डज इट मेक एनी डिफरेंस टू देयर दैट गवर्नमेंट? जो आज अगर हम जियो पॉलिटिक्स को देखें तो जो यूएस की बात नहीं सुन रही, जो गवर्नमेंट, भाई अब एक इंडिया स्ट्रॉन्ग कंट्री डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशंस के बीच में आ रहा है, एंड एवरीबॉडी इज सेइंग इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन नेक्स्ट 5 years। तो क्या फर्क पड़ने जा रहा है इंडिया पे? इज दैट गोइंग टू हैपन इन इंडिया, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं? तो मैं उन लोगों से ये खास करके हाथ जोड़कर उनसे मैं इंट्रोस्पेक्शन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पहले विचार तो करिए कि आप किस चीज को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इज इट पॉसिबल, जब यहाँ पर आप सेटल हो चुके हैं और इंडिया के अंदर वो लोग चाहते नहीं है? सो आई एम काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड कि ये हो क्या रहा है, किस चीज के लिए बात हो रही है। ये तो बिल्कुल वैसे बात हो गई कि 4 घर छोड़कर एक घर है, और मैं अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में एक रेफरेंडम करूं कि उस घर
के अंदर हम लोग एक कमरा उस पर कब्जा करके एक कमरा बनाएंगे जिसमें हमें कभी रहना नहीं है और उस घर के लोगों को डिवाइड कर देंगे। भाई लेट इंडियंस देमसेल्फ डिसाइड। हम लोग तो कैनेडियंस हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर रेफरेंडम भी कर मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड लॉजिक, मे बी आई एम नॉट स्मार्ट इनफ या इंटेलिजेंट नहीं हूँ मैं इतना, कि ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पर आप रेफरेंडम करते हैं, उस पर इतना आप पैसा खर्च करते हैं। उसकी जगह मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के करूंगा, अगर आपके पास इतना फंड्स है, सो व्हाई डोंट यू ओपन सर्टेन थिंग्स जहाँ आप विलेज ऑफ ओरिजिन है, क्योंकि आपकी डेट तो है, आप लोग सब इंडियन, हम लोग सब इंडियन पासपोर्ट लेकर आए। आज हम लोग जो यहाँ पर आए हैं, अगर हम सक्सेसफुल हैं तो वी ओ इट टू आवर गुरुज, भी अपने टीचर्स, अपने मोहल्ले के लोगों को या अपनी स्कूल्स हैं या अपनी यूनिवर्सिटीज को ओ करते हैं जिन्होंने हमें इतने कम पैसे में एजुकेशन दी या जो भी हमें उन्होंने स्किल्स दिए, और उन स्किल्स की वजह आकर हम लोग कनाडा में सक्सेसफुल हुए। तो भाई अगर हम लोग के पास इतना पैसा है, हम अपने देश में जाकर, उस अपने गांव में जाकर अपने गरीब लोगों के लिए कुछ क्यों नहीं करते हैं? या यहाँ पर जो वो लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, तो उनको कैश पे जब जॉब देते हैं $8.5 की, भाई कैश पे मजबूरी है जो भी है, आप उनको फिर $15 की जॉब तो नहीं देते हो, वहां पर उनका एक्सप्लॉयटेशन क्यों करते हैं हम लोग? सो दिस इज माय क्वेश्चन टू माई सेल्फ ऑल्सो, कि हम कर क्या रहे हैं, किस चीज पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं जो कि हम लोगों से डायरेक्ट रिलेटेड भी नहीं है। और देखिए उससे क्या होता है कि पूरे समाज में एक दूसरे से हेटर्ड फैलती है, अननेसेसरी परेशानियां फैलती हैं। और यहाँ पर सच्चाई ये है आशियाना जी कि बिजनेसेस भी और हमारे गुरुद्वारे और मंदिर आपस में इतने इंटरवुमन है, जैसे स्वेटर बुना हुआ होता है ना, उसका एक धागा निकालोगे पूरा स्वेटर उधड़ जाएगा। तो ये हालत समाज की हो जाएगी। तो मुझे तो यही कहना है इन लोगों से कि भाई जरा समझाओ तो सही, हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, व्हाट वी आर डूइंग, हम व्हाट वी आर बस अपने मन का सेटिस्फेक्शन है कि हमने उनका लगा दिया। मैं कल लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, कल आप एजिटेशन कर रहे हैं हाई कमिश्नर के सामने, आपका राइट है भाई, आप बिल्कुल करिए, यहाँ पे कनाडा आपको राइट देता है। लेकिन किसी भी बच्चे से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप जो है उस एम्बेसी की वॉल पे ना चढ़े या किसी भी ऐसी चीज को मत करिए, क्योंकि दे हैव नाउ, इंडिया हैज अ हाई सिक्योरिटी कैमरास एंड एवरीथिंग, दे विल एबल टू फाइंड आउट कि कौन लोग थे, कौन से गांव से थे, कौन से उससे थे। ऐसा ना हो कि उनको वहां पे उनके आपके पेरेंट्स को या आपके रिश्तेदारों को किसी को परेशानी हो। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि कोई बहुत ज्यादा उत्साहित होकर कोई ऐसा काम करिए जिससे, क्योंकि इंडिया अभी लेटेस्ट क्या हुआ है, क्या कहते हैं, 3 दिन पहले इंडिया के सारे कानून चेंज हो गए। आईपीसी धारा हट के इंडियन अपने कानून लेकर आया है, और खास करके इसमें बड़े स्ट्रिक्ट एक्शंस हैं उनके, मतलब बड़े स्ट्रिक्ट जो रिप्रेशंस हैं। कहीं भी किसी भी इंडियन, जैसे अमेरिका के है, यूएस के अगर किसी भी यूएस एम्बेसी पे कहीं भी कोई अटैक होगा तो वो उस आदमी को ढूंढ के लाते हैं, जैसे इजरायली करते हैं। तो इंडिया इज गोइंग ऑन दैट। आई एम नॉट सेइंग कि वो राइट है, रॉन्ग है, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं सभी को एक उनके भले के लिए बताना चाह रहा हूँ। हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लग रही हो, मैं माफी चाहता हूँ, पर जो सही है, जो सरकार कर रहे हैं, जो सही है, वो तो एज अ मीडिया आपको पता है, आप कई मीडियाज आउटलेट्स के साथ संबंध रखते हो, ख़ास तौर से आप एक्टिविस्ट हो, आप हर एक मुद्दे पर बात करते हो। अगर इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि जितने भी भारतीय यहाँ है या कैनेडियंस यहाँ है उनको पता चले। जी मैं वही बता रहा हूँ कि बिल्कुल रूल चेंज हो गया है। इस पे बड़ा एक स्ट्रिक्ट रूल आया है कि अगर कोई भी इंडियन काउंसलेट जनरल से रिलेटेड इंडियन कोई भी ऑफिशियल्स है या इवन इंडियन है, उस पर कहीं भी कोई अटैक करता है तो इंडिया अपने कंट्री के अंदर मुकदमा दाखिल कर सकता है। जैसे पहले तो ये था कि जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा मुकदमा नहीं होगा, चलता रहेगा। अब इन एब्सेंस जो जैसे यूएस के अंदर लॉ है वैसा लॉ आ गया, ये 4 दिन पहले चेंजेस हुए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इस लॉ के अगेंस्ट आपके अगेंस्ट मुकदमा करा जाएगा। एंड देन दे हैव एआई फीचर नाउ। वो कहीं भी जैसे ये वेंडलिज्म हुआ है, दे हैव दिस टेक्नोलॉजी के इस वेंडलिज्म से वो एआई जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें डेटा में फीड होंगे, और अगर ये इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, इनका कभी भी पासपोर्ट बना होगा, तो दे विल एबल टू मेक देयर फेस और निकाल लेंगे कौन लोग हैं वो। तो आई एम अवेयर ऑफ दिस थिंग। तो कहीं पर भी आप अगर मुंह ढककर भी जा रहे हैं, लेट मी टेल यू
कि मुंह ढक के जाने से कुछ नहीं है, आपके फेशियल से दे विल एबल टू फिगर आउट योर फोटोग्राफ, और वो फोटोग्राफ जो डेटा है आपके पासपोर्ट से मैच होगा, एंड दे विल एबल टू फिगर आउट ये बंदा कौन है, एंड दे हैव अनदर वेज आल्सो. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली इन इंडिया. तो मेरी रिक्वेस्ट सभी से यही है कि आपने जो भी एजुकेशन करना है खूब करिए, लेकिन अगर आपने इंडिया जाना है तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप जेन्युइन एजुकेशन करिए. कोई भी ऐसा काम मत करिए जिसमें वायलेंस हो. तो आई एम अगेंस्ट द वायलेंस. और जो हुआ जिनके मेजर साहब का, उसका भी हमें दुख है, हम लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, बट नोबडी नोज कि किसने करा है. तो अभी एकदम कह देना जैसा आप करा है, हु नोज के इंटरनल स्ट्राइक नहीं थी, हु नोज के अदर एजेंसीज इन्वॉल्व नहीं थी इंडियन एजेंसीज को बदनाम करने के लिए. हाउ डू वी नो ऑल दीज थिंग्स? सो जो हुआ है, देखिए उनका जिनके घर का गया है उसके घर वालों को तो बहुत दुख होता है, उनकी वाइफ को कितना, बच्चों को कितना दुख हुआ है. तो मैं उनके लिए कंडोलेंस है मेरी. तो हमें उनके लिए प्रेयर करनी चाहिए. इस तरह के काम ना करके कि और इस तरह की चीजें हो, वी शुडंट बी डूइंग दैट. तो यही मेरा कहना है. धन्यवाद. थैंक यू. इट्स ऑलवेज वेरी नाइस टू हियर फ्रॉम यू. थैंक यू जी. प्रोग्राम में और भी कॉलर्स शामिल करते हैं. नेक्स्ट कॉलर मीडिया वेव्स. हेलो. हेलो. हाँ जी. हाँ जी, सबसे पहले तो आपको, आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार. 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 आप ये जो टॉपिक ला रही हैं, सुबह से ला रहे हैं जी, मुझे पता है आप टाइम पर ऐसे टॉपिक वो किसी भी कम्युनिटी के हो उसको लाते हैं, और जो गलत है उसकी निंदा करते हैं, जो सही है उसकी आप प्रशंसा भी करते हैं जी. लेकिन ये जो काम हुआ है मंदिर में, हाँ जी, इसका पहले तो मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ. बिल्कुल. ये किसी भी संस्थान के पास हो तो मैं उसकी भी निंदा करता हूँ, किसी के साथ नहीं होना चाहिए जी. और बाकी जो मंदिर है, मैं मंदिर से बहुत सालों से कनेक्टेड हूँ, 18 साल से कनेक्टेड हूँ, और मंदिर की तरफ से कभी किसी के अगेंस्ट नहीं बोला गया जी. मंदिर में सभी धर्मों का स्वागत है. हिंदू, मुसलमान, सिख भाई सभी आते हैं मंदिर में, सभी का मंदिर में स्वागत होता है. इसी तरह गुरुद्वारों में भी होता है. आई डोंट थिंक कि उनमें नहीं होता. हम गुरुद्वारे भी जाते हैं जी. लेकिन जो कुछ लोग जो गलत काम करते हैं, जिन्होंने ये पोस्टर लगाए हैं जी, मेरे सभी भाई बहनों ने, कईयों ने अपने विचार दिए हैं, ये गलत है. क्योंकि ये जो पोस्टर वगैरह का काम है ये काफी देर से पहले भी चल रहा है, रेफरेंडम पहले भी हो चुका है, किसी ने उसकी निंदा नहीं की क्योंकि बड़े आराम से हो रहा है जी. और जब हम किसी को टारगेट करते हैं, टारगेट करके एक स्थान पे इस पे हमने निशान लगा दिया है, ये कर दिया, जहाँ पोस्टर लगा दिया, तो बहुत गलत बात होती है. कि रोड पे पहले भी लगे होते हैं पोस्टर, कई तरह के पोस्टर होते हैं, कई इंटरसेक्शन पे हमारे भाई बहन खड़े भी होते हैं फ्लैग झंडे लेके, लेकिन कोई किसी को कुछ नहीं कहता. लेकिन अगर आप स्पेशल किसी के, ये एक हमारा घर है, हमारे घर में आके हम घुस के कुछ करते हैं तो फिर वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है. सो इसकी निंदा तो बनती है, निंदनीय है. हम ये नहीं कहते कि हरजीत सिंह निज्जर जी का जो कत्ल हुआ है, उनका जो मर्डर हुआ है, वो बिल्कुल गलत है. इसके साथ सहमत है. इंसान है, हम नहीं कहते सिख का हुआ, हिंदू का है, एक इंसान का कत्ल हुआ है जो कि कभी नहीं होना चाहिए. और मेरा तो विचार ये है कि हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख भाइयों को एक शांति से रहना चाहिए, सब मिलजुल कर रहना चाहिए, और रह भी रहे हैं बहुत से लोग. ज्यादातर लोग रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो ये गलत काम करते हैं. लेकिन जो भी हुआ इसकी मैं बहुत बहुत निंदा करता हूँ. सभी लोग निंदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो बाकी जो कानून है वो अपना काम करेगा, जो भी गलत होगा, जो रॉन्ग पाया जाएगा उसको सजा मिलेगी और मिलनी चाहिए. और मैं अपने सारे पॉलिटिक्स, जैसे पॉलिटिशियन, MP, MLA, प्रीमियर जो भी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आगे आए, इसकी निंदा करें, और जो भी इंसाफ है वो मिलना चाहिए. शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. बिल्कुल, ऐसे हरकत जो भी करते हैं वो समाज को गलत पिक्चर दिखाते हैं. दिस इज़ रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, और ये नहीं होना चाहिए. वैसे इस टॉपिक को हम ज़रूर कंटिन्यू करेंगे. 604-449-4444. विल बी राइट बैक आफ्टर क्विक कमर्शियल ब्रेक.
ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 597 1119 ਤੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SINP ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਮੈਰਿਜ, LMIA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰੀ ਕਲੋਨਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਵਿਖੇ ਨੇ। ਸਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 209 7928 128 ਸਟਰੀਟ 604-597-1119 ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਘਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਟੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਸ਼ੇਰਿਆ? ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ HD ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਮਾਓ ਏ ਫੋਨ 604 231 9592। ਹੁਣੇ ਲਓ ਸਰਦਾਰ 604 231 9592। ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਲੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ HTA ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਿੰਪਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ। ਕਾਲ HTA 604 231 9592। बिरयानी, गोट कढ़ाई, निहारी चिकन कढ़ाई, बाबा की बीफ कबाब कढ़ाई। केड़ा खान पीन दा मंत्र पढ़ रही है? ए मंत्र हाउस ऑफ चिकन दे डिशेस दा है। चाहे वो बिरयानी हो या फिर गोट कढ़ाई, कल दे डिनर भुल नहीं सकदी। अभी भी हाथों से खुशबू नहीं जा रही। हाँ, मैं भी सुने हाउस ऑफ चिकन दा क्रिस्पी ग्रिल्ड चिकन या फिर तंदूरी चिकन, विंग्स, बर्गर, पेरी पेरी बहुत ही स्वाद ने। पहुंचो 8223 स्ट्रीट डल्ट वाले पासे। टेलीफोन नंबर 2364661119। एक वारी हाउस ऑफ चिकन दी बिरयानी खाओगे, पाकिस्तान दी बिरयानी भुल जाओगे। हाउस ऑफ चिकन। हाउस वार्मिंग पार्टी ते सारिया दे निगाह घर दे ब्लाइंड्स वाली सी। ना नू की पता एक घर दी सजावट ग्रेट ब्लाइंड्स दा कमाल है। ग्रेट ब्लाइंड से मॉडर्न डिजाइन दी बहुत ज्यादा बड़ी सिलेक्शन देखने ते खरीदण दे लई इकलौते शोरूम दा पता है योर नंबर 14 13478 78th एवेन्यू 604-503-7007 ते करो कॉल। ग्रेट ब्लाइंड से अमेरिका वाले शोरूम दा पता 3705 अवर्न वे, अवर्न, वाशिंगटन 2533217007 जां greatblindscanada.com ते करो विजिट। कर जिथे मर्जी लो, पर्दा ग्रेट ब्लाइंड्स तो ही लवाओ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 572 4000। ਇਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੇ ICCRC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ 2011 ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 575 8000। यूनिट नंबर 403 83 18 120 स्ट्रीट सरी, जहां विजिट करो www.newworldcanada.ca। मीट की वैरायटी हो सकती है, पर एक थां ते जाना गच्चा मीट शॉप ते, जिथों कि फ्रैश ते मैरीनेटेड मीट की वड्डी वैरायटी तुसीं लै सकदे हो। वैजीटेरियंस लई वेजी, पनीर टिक्का ते होर भी बड़ियां आइटम्स ने। गच्चा मीट शॉप दियां 18 लोकेशन से जाओ। पार्टी तुहाडी अपने घर दे विच है जां फिर वीकेंड पार्टी है, इकट्ठ है, हर तरह का मीट खरीदना जाओ 18 लोकेशन दे विच। और नेड़े दी लोकेशन का पता जानने दे लई गच्चा मीट शॉप ते तुसीं विजिट भी कर सकते हो। गच्चा मीट शॉप। कक्का खक्का गगा खक्का घर पापा ਆਪਾਂ ਘਰ ਕਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਲੈਨਟ ਗਰੁੱਪ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2100 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਬਣੇ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਵੇਟਰ ਵੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ 6047168570 604 716 8570। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨ, ਵਾਕਰ, ਵੀਲਚੇਅਰ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਵਰੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫ੍ਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਬਲਿਸਟਰ ਪੈਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 8925 ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਡੈਲਟਾ 604-599-0211 128 ਸਟਰੀਟ ਐਂਡ 96 ਐਵੇਨਿਊ 604-581-1900 1539 ਜੌਨਸਨ रोड व्हाइट रॉक फैमिली केयर फार्मेसी। शुक्र है डायरेक्ट फर्नीचर नवी था ते खुल गया। हाँ तो पूरे घर
घर दा फर्नीचर मैं डायरेक्ट फर्नीचर तो लेके आउनी आ। ਲੈ ਗੋਲੀ ਕਿਹਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕਿਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਹੁਣ ਸਰੀ ਦੇ ਗੜ 12743 80th ਐਵਨਿਊ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਟਰ ਔਰ ਮਿਸਿਸ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604-572-5553 ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੌਲਟ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ, ਥੈਫਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਆਫੈਂਸਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਊਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਲਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਸਾਊ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਜੋ 4 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ BC, ਅਲਬਰਟਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇਸਸ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਗਗਨ ਨਾਹਲ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਨਾਹਲ ਨੂੰ 604-527-4769 6625-152 A Street, Surrey। For all criminal charges, call Gagan Nahal 604-527-4769. ਮੀਡੀਆ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਭਰਮਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 604-449-4444। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁ ਨਸਲੀ ਸਮਾਜ ਬੜਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕੱਖ ਦੀ ਵੀ, ਵੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰੀ ਦੀ ਬਹੁ ਨਸਲੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਚਰਨ ਨੇ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁ ਨਸਲੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਪਹੇ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਅਗਾਊਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਸਮਝੋ, ਠਹਿਰੋ, ਦੇਖੋ, ਉਪਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਮਿਆਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਖਾਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਿੱਖ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਸੋਚਣ, ਸਮਝਣ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਭਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਅਕਸਰ ਉਪਭਾਵਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮਸਲਾ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਪਭਾਵਕਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਔਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਖਮਿਆਜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਰਕਾਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਰਕ ਹੋਣ ਦੀ, ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈ,
ਉਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ, ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਨਸਰ ਕਿ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਨਖੇਧੀਜਨਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਰੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋੜ ਸਕਣਗੇ। नो वे। बिल्कुल, इट्स वेरी वेरी हर्टफुल आई शुड से कि इस तरह के हरकतें लोग यहाँ पर इस मुल्क में, हमारे शहर में कर रही हैं, जो नहीं करना चाहिए। और एक प्रोमिनेंट मंदिर है सरी में, ब्रिटिश कोलंबिया में, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जहाँ पर ये जो पोस्टर्स है दीदी, एंटी इंडिया एंड प्रो खालिस्तान पोस्टर्स है, जो उनके गेट पर और उनके दरवाजे पे लगाए, उनके वॉल्स पे लगाए, ये बहुत ही गलत और बहुत ही शर्म वाली बात है कि हम यहाँ पर इस मुल्क में भी बैठकर इस तरह की हरकत करते हैं। और जब हम वो वीडियो देखते हैं तो और ज़्यादा अफसोस इस बात की है कि नौजवान बच्चे हैं जी। और जिस तरह से कॉलर्स ने भी कहा कि उसमें से एक फीमेल है, और बिल्कुल पता चलता है इस तरह से। और अगर आप लोग इन दोनों बच्चों को पहचानते हो, यू नो हु दे आर, ज़रूर सरी के पुलिस को ज़रूर कॉल करके उन्हें बताओ, क्योंकि वी वांट टू गेट टू द बॉटम ऑफ दिस कि हमारे यहाँ पर कम्युनिटीज़ इतने ख़ास तौर से कनेक्टेड है जी, एक दूसरे के साथ इतने प्यार के साथ रहते हैं, चाहे वो सिख्स हो, हिंदूज़ हो, मुस्लिम्स हो या क्रिश्चियंस हो या फिर और कोई मज़हब को मानने वाले हैं। वी लिव इन अ वेरी कनेक्टेड टाइट कम्युनिटी हियर इन सरी BC। और इस तरह की हरकतें गलत मैसेज देती हैं, हम सारे कौमों को ये बदनाम करने की कोशिश हो रही है, विच वी आर नॉट गोना टॉलरेट। कोई कहेगा कि जी फलाना ने लगा दिया, कोई कहेगा जी फलाना ने कर दिया, कोई कहेगा कि इन्होंने कर दिया, उन्होंने कर दिया। आज तक जून 18 तारीख के जो कत्ल है, जो सरी गुरुद्वारा में हुई है दीदी, उस कत्ल के बारे में कोई न्यूज़ बाहर नहीं आई जी। उसके बारे में अभी कोई फैसले नहीं हुए, कोई चार्ज नहीं किया गया। लेकिन इस तरह से आप प्रो एंटी इंडिया जो पोस्टर्स लगा रहे हो विद द हाई कमिश्नर एंड द काउंसिल जनरल, ये एक बहुत ही आई शुड से गिरी किस्म की, नीच किस्म की हरकतें हैं। वी शुड नॉट बी डूइंग इट। जो भी कर रहा है, इट्स रॉन्ग एंड इट शुड बी स्टॉप्ड। ऐसे पोस्टर्स बाहर लगाना सिर्फ अपनी कम्युनिटी की बेइज्जती नहीं है, पूरे लोअर मेनलैंड में जितने लोग हैं उन सारों की बेइज्जती है, इंक्लूडिंग सिख्स, हिंदूज, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। क्योंकि अभी तक साबित नहीं हुआ कि हुआ क्या था उस जून 18 तारीख को। वो हम मीडिया भी इंतज़ार करते हैं। हम चाहते हैं कि जिन्होंने ये गंदगी हरकत की है शुड बी एक्चुअली ब्रॉट इनटू द लाइमलाइट, और उनके साथ भी सख्त से सख्त कानून सजा दे। लेकिन वी कैन नॉट स्टार्ट मेकिंग पोस्टर्स लाइक दिस। दिस इज रॉन्ग। एक बात हमेशा समझा करो, गुस्से में कहे हुए अल्फाज आपको बहुत प्रॉब्लम्स में डाल सकते हैं। मैं समझ सकती हूँ, फ्रस्ट्रेशन हर किसी के अंदर है, गुस्से हर किसी को आ रहे कि जो जून 18 तारीख को सरी गुरुघर में इंसिडेंट हुई, मर्डर हुआ, एवरीबडी इज़ मैड अबाउट इट। सिर्फ यहाँ इस मुल्क में, कनाडा में नहीं, दुनिया के हर किसी कोने में हर कोई इस बात की निंदा कर रहे हैं कि ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था ऐसे। हर किसी के अपने ओपिनियंस है। वी ऑल हैव आवर ओन ओपिनियंस। कोई हम पसंद करते हैं, कोई नहीं पसंद करते किसी बात को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम कानून को अपने हाथ में ले लें। इसका मतलब ये नहीं कि हम जाकर अपने गुंडागर्दी करना शुरू कर दें।
कई बार मुझे गुस्सा आएगा तो मैं फलाना को ब्लेम करूँगी, फलाने को गुस्सा आएगा तो वो दूसरे को ब्लेम करेगा. We all have this blame game going around for ages. It has been going on in our community. लेकिन इस तरह से पोस्टर्स लगा के, इस तरह से हरकतें करके, दिस इज़ रॉन्ग. आप लोग रेफरेंडम कराना चाहते हो, ज़रूर कराओ, शौक से कराओ, पीसफुली कराओ. हर किसी का अपना फ्रीडम है, हर किसी का अपना राइट है. मैं अक्सर इस बात को कहती हूँ. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वी हैव टू गो टू दैट लेवल कि हम इस तरह से एंटी इंडिया पोस्टर्स बना बना के मज़हब प्लेसेस, रिलीजियस प्लेसेस पे ले जाकर लगाए. और क्यों लगा रहे? कौन है जो यहाँ के पीसफुल, जो कम्युनिटी के एक दूसरे के साथ ताल्लुकात है, उसे ख़त्म करना चाहते हैं? दिस इज़ रॉन्ग, और हमेशा हम इस बात को रॉन्ग ही कहेंगे. मैं गुजारिश करूँगी अपने सारे लिसनर्स से कि जो गलत है उसे आवाज़ उठाओ कि गलत है. जो सही कर रहे हैं उसे हौसला दो कि वो सही काम आगे भी करे. स्टैंड फॉर योर राइट्स. इस तरह की हरकतों को निंदा करो, बताओ कि ये गलत है. हमारे जो मज़हब की जगह है उसे प्रेयर के लिए ही रहने दो. वहाँ लड़ाई झगड़ा, गंदगी हरकतों का कोई काम नहीं है. इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए इस प्रोग्राम से. Until next time, goodbye and be safe. प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ.